in which one thing is eagerness, that burning desire to see the Gaurang Prabhu. From last 1 month, all the students, they know the Gaurang Prabhu Supermassive. Gaurang Prabhu is the world most famous leader, इस सदी के सबसे बड़े हस्ती हैं. अब जो हमारी ये बर्निंग डिजायर है, नाउ इट हैज कम टू बिकम ट्रू. ये जो हमारा सपना है, ये अभी साकार होने जा रहा है और हम गौरांग प्रभु से मिलने जा रहे हैं. सो नाउ ओवर टू यू प्रणीम, प्लीज कंटिन्यू. हरे कृष्णा. Hare Krishna. So today I am here to introduce a great personality which is sitting in front of you, Honorable Gaurang Das Prabhu. He is a leadership and mindful coach based in Mumbai, a graduate of IIT Bombay. He found his calling to become a monk to best service to society. A member of ISKCON's governing body commission, he is actively involved in enhancing leadership effectiveness and governance to temples and communities globally. He is dedicated to help people to transform their hearts, improve their attitude, establish sustainable and spiritual communities, and drive a positive change to society. A multifaceted spiritualist on the mission to create a value-based society. Gaurang Das Prabhu is a mindful meditation expert, strategic character educationalist, sustainability and climate change warrior, and also a social welfare catalyst. Gaurang Das Prabhu is the director of ISKCON's Govardhan Eco Village, founded by Radhanath Swami. The Govardhan Eco Village, representing India, has won more than 36 national and international awards, including the United Nations World Tourism Organization Award in 2017 for its innovation model of ecotourism as a catalyst of rural development. He is also organized and lead execution of Govardhan Eco Village Synergetic Solution for Sustainable Developmental Goals for climate change and enable Govardhan Eco Village accreditation to multiple United Nations like UNEP, UNCCD and CBD. On behalf of ISKCON, he is the UNEP's Faith for Earth Counselor. The Indian Green Building Council has recognized him as a multi-campus global Sanskrit University over 12 ISKCON to connect working libraries of Vedic literatures and manuscripts and facilitates MA and PhD programs in philosophy. He sits on the board of Govardhan School of Public Leadership, an institution therapist students for the civil exam. He is also the author of 2 books, namely The Art of Resilience and The Art of Focus. He is an inspirational speaker for his expertising and presenting Vedic knowledge in the contemporary and inciting way. He has spoken in various conferences like TEDx and corporates like Intel, Salesforce, Google, etc. Gaurang Das Prabhu is also an experienced chief and mega kitchen strategist and has personally cooked over 3 billion meals. He inaugurated the Govardhan Akshamantra program at the Govardhan Eco Village with an intention to distribute free sanitizing food amongst the pilgrims and villagers in Palghar district and to work closely with the government, corporates and other non-minded NGOs to enable hunger-free Palghar. He visited faculty at IIM Nagpur and recently he has also received the honorable doctorate degree from the Kaziranga University of Assam for his all valuable work. So I wholeheartedly welcome Gaurang Das Prabhu and hand over my. And now we people, the Padal University's people, we have got this opportunity to meet the Gaurang Das Prabhu. So now we will chant a loud Hare Krishna Mahamantra to invite Gaurang Prabhu for the wonderful reciprocation with us. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare. Over to you, Gaurang Prabhu. निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर उपस्थित सभी युवाओं का मैं आज के इस संध्याकालीन कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। बीच में जो खड़े हुए हैं सब लोग बैठ जाइए। ये जो यहाँ पर तो इस्कॉन बड़ौदा, वंशीधारी प्रभु और बाकी जितने भी इस्कॉन यूथ फोरम बड़ौदा से संबंधित लोग हैं जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को आयोजित करने में सहायता की, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज भारत पूरे विश्व में सबसे अधिक युवाओं की संख्या प्राप्त करने का एक अधिकार जताया है। हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि इतने युवा भारत में आज हैं। मैं जब आईआईटी में पढ़ रहा था उसी समय का एक किस्सा आज सुबह के कार्यक्रम में मैं सुना रहा था कि कई बार लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि भाई आईआईटी करके आप कैसे इस प्रकार के कार्यशैली में आ गए, साधु वाधु बन गए, क्या हो गया। किसी ने तो कभी ये भी पूछ लिया कि किसी ने दिल तोड़ा था क्या, ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ छोड़ छाड़ के अब बैरागी बन गए। तो मैंने कहा नहीं, इतना कुछ ड्रामेटिक नहीं था, लेकिन हमारे एक मित्र थे, बहुत अच्छा पढ़ते थे, अचानक आत्महत्या करने का उन्होंने प्रयास किया। जिस रस्सी से वो लटके वो रस्सी हल्की थी, उनका वजन भारी था, रस्सी टूट गई और सुसाइड अटेम्प्ट फेल हो गया। तो हम लोग जाके पूछे कि क्या हो गया भाई, आपका तो सब ठीक ठाक चल रहा था, क्यों आत्महत्या करने पे तुले। तो कहते हैं क्या करें, हर एग्जाम में मुझे गोल्ड मेडल मिलता था, इस एग्जाम में मुझे सिल्वर मेडल मिला, हम अपने आप को संभाल नहीं पाए। तो मैं चौंक गया, मैं उसको कहने लगा, अरे लोग आईआईटी में घुसने के लिए मर रहे हो, हंसते खेलते और लोगों को प्रोत्साहन दे रहे थे, चिंता मत करो, हमको देखो। तो मैंने उनको पूछा, अरे तुम लोग तो बड़े बेशरम हो, निर्लज हो, इतने सब्जेक्ट में फेल होने के बाद भी आप लोग आराम से घूम रहे हो, ऐसे कैसे। तो मेरे 3-4 मित्रों ने उत्तर दिया, हम लोग का फिलॉसफी सिंपल है, कॉलेज में घुसना अपना काम है, निकालना कॉलेज का काम है। मैं ये फिलॉसफी प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बहुत उत्साह के साथ आप लोग ताली बजा रहे हो और आपको लगेगा शायद यही हमारी फिलॉसफी है। लेकिन उस दिन मुझे इस बात का आभास हो गया कि चाहे व्यक्ति कितना भी कोई स्तर प्राप्त कर ले, कोई पद प्राप्त कर ले, कोई प्रतिष्ठा प्राप्त कर ले, लेकिन आधुनिक शिक्षा प्रणाली हमको सिखाती है कि कैसे आप उस स्तर पर प्राप्त कर सकते हो, उस पद को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन आधुनिक शिक्षा प्रणाली हमें ये नहीं सिखाती कि आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए अगर कोई दूसरा व्यक्ति वो पद प्राप्त कर ले। आईसीयू में एक मेरे मित्र के पास गया, हार्ट अटैक हुआ, पूछा क्या हो गया, सब कुछ ठीक चल रहा था, हार्ट अटैक कैसे हो गया। उसने कहा क्या करे, लेटेस्ट अप्रेजल में मेरे से 2 लेवल जूनियर व्यक्ति को प्रमोशन मिल गया, मेरा बॉस बन गया वो। और फिर उसने कहा वास्तव में सदमा की बात यह है कि मैंने ही उसको रिक्रूट किया था और आज वो मेरा बॉस बन गया। तो मैंने अपने मन को बहुत मनाने का प्रयास किया, लेकिन क्या करें। तो इसलिए कई बार हमारी शिक्षा प्रणाली में केवल आर्थिक विकास के सिलसिले में बहुत सा ज्ञान दिया जाता है, लेकिन हम सभी मनुष्य हैं जिनके हृदय में भावनाएं हैं, और इन भावनाओं के विषय में हमारे शिक्षा प्रणाली में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में किसी भी कोर्स के अंतर्गत कभी कोई वर्णन नहीं आता। लेकिन वास्तविक बात यह है कि हम सभी जब अपने अपने कार्य क्षेत्र में लगे रहते हैं तो हम दूसरों के कार्यों से, दूसरों के विकास से, दूसरों के हर प्रकार के कार्य प्रणाली से प्रभावित होते हैं। और जब हम अपने भावनाओं को, काम, क्रोध, लोभ, द्वेष इत्यादि को नियंत्रित करने का प्रयास करें, उसके लिए कोई मार्ग नहीं बताया, कोई शैली नहीं बताई, और हर व्यक्ति केवल अपना इकलौता युद्ध झेलता हुआ
प्रयास कर रहा है, सोच रहा है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। आज भारत में 30 करोड़ लोग मानसिक रोग के शिकार होते चले जा रहे हैं। प्रतिदिन 370 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ये एक वास्तविकता है कि मानसिक रोग भी एक बहुत बड़ा शत्रु बन के हमारे सामने खड़ा हुआ है। तो इसलिए मैं कहता हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड हैप्पीनेस? द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इज टीचिंग एवरीबडी हाउ टू बी सक्सेसफुल. It is not teaching people how to be happy. So what's the difference between success and happiness? Success is to get what you like, and happiness is to like what you get. और इसलिए जो आप अपने अपने स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाई करते जा रहे हो, शिक्षा ग्रहण करते जा रहे हो, ये आपको हर प्रकार से सफलता के पद पर आगे बढ़ाएगा। आपको जो पद चाहिए, जो संपत्ति चाहिए, जो साम्राज्य चाहिए, जो भी इन्फ्लुएंस और पोजीशन चाहिए, हो सकता है आप उससे प्राप्त कर लें। लेकिन उसे प्राप्त करने के पश्चात क्या आप अपने जीवन में विभिन्न स्थानों पर और अपने जीवन की यात्रा में विभिन्न मोड़ों पर जो आपके जीवन में चुनौतियां आएंगी, विपत्ति की परिस्थितियां आएंगी, उनको सहन करने के लिए, झेलने के लिए और उनका प्रतिकार करने के लिए क्या आपके अंदर तैयारी है अथवा नहीं? इसलिए जो आपका भौतिक शिक्षा है वो आपको भौतिक सफलता के लिए तैयार कर रहा है, और उसके साथ साथ अगर आप भगवत गीता के ज्ञान को जोड़ोगे तो वो आपको इस जगत में हर परिस्थिति में कैसे हम उस परिस्थिति के आते हुए चुनौतियों को सहन करें, उसके लिए तैयार करेगा। Therefore, your modern current education is extremely relevant for your success, and add the knowledge of Bhagavad Gita to bring in the dimension of happiness, and that is why ISKCON is there to help you and support you in that journey. तो आज मेरे the fire of energy, जब तक आपके अंदर एक ऊर्जा नहीं होगी, आपके अंदर जब तक उत्साह नहीं होगा, तब तक आप अपने जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। तो व्हाट इज फायर? F फॉर फोकस। आज के सोशल मीडिया के जमाने में हर व्यक्ति केवल देख रहा है कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे क्या प्राप्त कर रहे हैं, उनकी क्या लीला चल रही है। हर व्यक्ति अपने टैलेंट को भूलता चला जा रहा है। अगर आप अपने टैलेंट के ऊपर फोकस नहीं करोगे, आपकी क्या क्षमता है, अगर उसके ऊपर फोकस नहीं करोगे, तो फिर धीरे धीरे आप अपनी आइडेंटिटी, अपने व्यक्तित्व को खो दोगे। So therefore focus means you focus on your abilities, your proclivities, your talents, your desires, and bring out the best within you. Otherwise you will get distracted by the wholesale advertisement happening in this world. एक व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा था, उसने देखा कोई पंखा बेच रहा है। पंखा वाला एडवर्टाइज कर रहा था, 4 आने का पंखा लो, 4 आने का पंखा लो, लाइफ टाइम वारंटी है, आप टूट जाओगे, पंखा नहीं टूटेगा। तो एक सामने बैठा व्यक्ति ने 4 आना दिया, पंखा ले लिया। जैसे पंखा लिया, चलाया, पंखा टूट गया। उसने पंखा बेचने वाले को पकड़ के कहा कि सर, आपने कहा लाइफ टाइम वारंटी, ये तो पंखा एक ही बार में टूट गया। तो बेचने वाले ने कहा, सर आपने मुझे पूछा नहीं पंखा चलाना कैसे, ये बड़ा स्पेशल टाइप का पंखा है, पंखे को सीधा रखना है, सर को हिलाना है। तो कई बार एडवर्टाइजमेंट आता है, उस विज्ञापन को देखकर हम उसकी बातों में आ जाते हैं, बाद में समझ में आता है कंडीशंस अप्लाई। जब अंग्रेजों के जमाने में कोबरा सर्प की संख्या बहुत बढ़ गई, 1910 और 1915 के रूप में
अब ब्रिटिश सरकार को लगा कि भाई इससे प्रेरित होकर लोग सांप मार मार के लेके आएंगे, लेकिन अंग्रेज सरकार को पता नहीं है भारत है, यहाँ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चलता है। वो सभी कोबरा सांप का फार्म चालू कर दिया। कोबरा सर्प की संख्या बढ़ने लगी। ब्रिटिश सरकार हैरान हो गई कि इतने सांप कहां से आ रहे हैं। तब ब्रिटिश सरकार को मालूम पड़ा ये तो मारने के बदले ये लोग तो अपना बिजनेस प्लान बना लिए। तो ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर दी कि हम अपने इस प्लान को रद्द कर रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने ये घोषणा की, किसान बड़े परेशान हो गए, दुखी हो गए, गुस्सा हो गए, और सारे सर्प थे वो सब दिल्ली में ही छोड़ दिए। तो जब किसी समस्या का समाधान का हम प्रयास करते हैं और वो समाधान समस्या से अधिक घातक सिद्ध होता है, उसे कहते हैं कोबरा इफेक्ट। When the proposed solution is worse than the original problem, it is called the cobra effect. तो इसलिए आज युवा पीढ़ी को पूछो तो कहेंगे मन विचलित है, लेकिन क्या कर रहे हो? अरे हम थोड़ा दारू पी लेते हैं, कभी स्मोक कर लेते हैं, कभी ड्रग्स कर लेते हैं, कभी ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। द सोल्यूशन इज वर्स देन द ओरिजिनल प्रॉब्लम। और उसके कारण लोगों की परेशानी बढ़ती चली जा रही है। इसलिए जब हम फोकस वाली बात करें तो आपको समझना आवश्यक है कि भगवान ने आपको एक क्षमता दी है, आपके अंदर एक टैलेंट है, और हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य अनुसार उस टैलेंट को कभी न कभी पूर्ण रूप से विकसित कर सकता है। इसका आत्मविश्वास आपके अंदर होना आवश्यक है। केवल दूसरों को देखकर नकल करने का प्रयास करोगे तो स्वयं कुछ नहीं पाओगे, और फिर समय के साथ आपका आत्मविश्वास समाप्त होता चला जाएगा। तो कहते हैं देयर आर 3 कैंसर्स ऑफ द माइंड: कंपेयरिंग, कंप्लेनिंग एंड क्रिटिसाइजिंग। एक पब्लिक स्पीकिंग टीच करने वाले व्यक्ति आए, उन्होंने सेमिनार लिया कि भाई पब्लिक स्पीकर बनो। उनके विज्ञापन को सुनकर 300-400 आदमी रजिस्टर हो गए, बोले हम पब्लिक स्पीकर बनेंगे, एक्सपर्ट स्पीकर बनेंगे। तो जो टीच कर रहे थे कोच, उन्होंने कहा देखिए अगर किसी को एक्सपर्ट पब्लिक स्पीकर बनना है तो आपका स्पीच का स्टार्टिंग का पार्ट बड़ा ही रोमांचक होना चाहिए। You have to capture people's attention in the first 2 minutes. फिर उसने कहा एक मैं एग्जाम्पल देता हूं कैसे आप स्पीच स्टार्ट करो। और उसने कहा आप कुछ ऐसा स्टेटमेंट से स्टार्ट करो, क्या कि मेरे जीवन के सबसे अच्छे पल ऐसे महिला के बाहों में गए, मेरी मां थी। तो वहां पर बैठा हुआ एक गांव वाला अपने गांव में गया और उसने एडवर्टाइज किया मैं पब्लिक स्पीकर बन गया हूं, मेरा लेक्चर सुनने आ जाओ। तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया, पोडियम पे खड़ा हो गया, पहली बार खड़ा हो रहा था, नर्वस था, हृदय धक धक कर रहा था। खड़े होकर उसने सबसे पहले ऐलान किया मेरे जीवन के सबसे अच्छे पल ऐसे महिला के बाहों में गए जो मेरी पत्नी नहीं थी। और इतना नर्वस हो गया, इतना नर्वस हो गया, आगे का लाइन भूल गया। और बहुत सोचने का प्रयास किया, बहुत सोचने का प्रयास किया, याद नहीं आया। और कहता है और मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन थी। तो सोचिए अगर हर व्यक्ति ही पब्लिक स्पीकर बनने का प्रयास करेगा तो श्रोता कौन बनेगा। आज मैं बता रहा था कि मेरे एक मित्र बिजनेस कार्ड लेके गए किसी कॉन्फ्रेंस में
और उन्होंने किसी को देखा एक कॉन्फ्रेंस में आकर, उन्होंने अपना बिजनेस कार्ड दिया, उसमें उनका नाम था, नाम के नीचे उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखा था PhD BF। बोले यार ये क्या? बोले PhD बट फेल। तो उन्होंने कहा ये क्या अजीब सा आपका क्वालिफिकेशन है? उसने कहा मेरे पिताजी ने मुझे फोर्स किया कि तू PhD बन। क्यों? क्योंकि तेरे 2-3 कजिन PhD हैं, अगर तू PhD नहीं बनेगा तो हमारे परिवार में हमारी मान हानि होगी, तो तू PhD बनना पड़ेगा। तो उसने रजिस्टर किया, 2-3 साल बाद मालूम पड़ा मेरी औकात नहीं, बाहर निकल गया। परिवार वहां रुका नहीं, बोले तुमको कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो जाते तो कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए PhD नहीं होगा तो लोग कहेंगे कैसे घुस गए। तो उसने कहा मैंने PhD ऐड किया, आगे BF भी जोड़ दिया। लेकिन सच बताऊं तो सबको लगता है ये BF PhD के आगे का कोई डिग्री नहीं। बंबई का होटल प्रेसिडेंट, 5 स्टार होटल, रोटी 150 रुपए की मिलती है, रेट देख के पेट भर जाए। होटल प्रेसिडेंट के बाहर एक ठेले वाले ने ठेला लगाया, समोसा बेचने लगा, उसका नाम दे दिया होटल वाइस प्रेसिडेंट, और कहता है प्रेसिडेंट पे जो नहीं खा सके वाइस प्रेसिडेंट में आ जाओ। तो आज के समाज में हर व्यक्ति केवल कंपैरिजन, एक दूसरे की नकल करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसी के आधार पर आगे बढ़ने का और सफलता का मापदंड बना के रखा है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस बात पर फोकस करें, ध्यान केंद्रित करें कि हम क्या कर सकते हैं। What is my talent? What can I contribute? आज माता पिता अपने बच्चों को कभी किसान बनने, टीचर बनने या सैनिक बनने के लिए प्रेरित ही नहीं करते। सब बनो इंजीनियर, डॉक्टर, MBA, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो फिर समाज में कितने वर्ग और कितने श्रेणी के लोग हैं। महाभारत में भी देखा गया कि भीमसेन को अचानक एक दिन लगा कि भाई केवल अर्जुन को ही संगीत के कार्यक्रमों में बुलाया जाता है। संगीत के और सांस्कृतिक कोई भी कार्यक्रम होते हैं, अर्जुन जाते हैं, लेकिन मुझे केवल मारपीट के लिए बुलाते हैं। भीमसेन को लगा ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं भी संगीत में एक्सपर्ट बनूंगा। तो जब भीमसेन ने ऐसे संकल्प किया तो भीमसेन गए और पूरे इंद्रप्रस्थ के जो सबसे बड़े संगीतकार थे, म्यूजिक टीचर, उनको कहते मुझे संगीतकार बना दो। अब म्यूजिक टीचर भीमसेन इंद्रप्रस्थ के राजद्वार पे बैठकर इतने जोर जोर से चिल्लाते थे कि पूछो मत। उनको लगता था बड़ा अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जितने नागरिक थे सब परेशान। सब लोग ने आके युधिष्ठिर महाराज को कहा अपने भाई को समझाओ, भाई बहुत पब्लिक न्यूसेंस कर रहा है, इतनी जोर की आवाज हो रही है, हम लोग की नींद हराम हो रही है। युधिष्ठिर ने कहा अरे युधिष्ठिर, ये भीमसेन को फीडबैक कौन देगा? तो द्रौपदी ने जाके भीमसेन को कहा कि भाई संगीत बहुत ही दिव्य विद्या है, गंधर्व विद्या है, यूं यहां बैठकर चिल्लाना उचित नहीं। अगर संगीत का अभ्यास करना हो तो ऊपर पर्वतों में जाकर जंगल के बीच बैठकर आप अभ्यास करो। तो भीमसेन को यह फीडबैक अच्छा लगा, तो बिल्कुल जंगलों में, पर्वतों में जाकर बैठकर जोर जोर से वो गाने लगे, चिल्लाने लगे। अचानक एक झाड़ियों के पीछे से एक दिन व्यक्ति आया और उसने भीमसेन को देखा, देखकर मुड़कर भागा। अब बैठने तब मुड़कर वो भागा तो भीमसेन ने देखा ये कौन था। तो भीमसेन उसके पीछे पीछे भागे, पकड़ा उसको, बोले कौन है तू? जंगल में तो कोई आता नहीं मुझे प्रैक्टिस करते हुए देखने, आज अचानक तुम आ गए, कौन हो तुम और भाग क्यों रहे हो? वो कहता नहीं नहीं, मैं मुझे जाने दीजिए। भीमसेन बोला बताओ कौन है, नहीं तो पीट डालूंगा। वो कहता है डर डर के, मैं यहाँ का धोबी हूं, मेरा गधा गायब हो गया, आपकी आवाज सुन के लगा गधा मिल गया। जैसे ही ये कहा, भीमसेन को ऐसा धक्का लगा कि उस दिन से वो
संगीत से ही रिटायर हो गए। तो इसलिए 5 पांडवों की विशेषता ये थी कि पांचों पांडव अपने आप में विभिन्न गुणों से युक्त थे और वो सभी अपने अपने गुणों को, अपनी अपनी शक्तियों को धर्म के संरक्षण में लगा रहे थे। इसीलिए फायर के अंतर्गत F स्टैंड्स फॉर फोकस। आप अपने कौन सी कला और गुण पर फोकस करोगे, ध्यान केंद्रित करोगे, जिससे कि आप अपने जीवन में, दूसरों के जीवन में और विश्व में एक परिवर्तन ला सकते हो। दूसरा I स्टैंड्स फॉर इंटेंशन। आपकी प्रेरणा क्या है कार्य करने की? तो ये इंटेंशन 4 स्तर पर है। सबसे निकृष्ट स्तर पर है भय से प्रेरणा, टू बी इंस्पायर्ड बाय फियर, ये तमोगुणी है। उसके ऊपर टू बी इंस्पायर्ड बाय डिजायर, ये रजोगुणी है। भय से प्रेरणा, अगर मैं एग्जाम नहीं लिखूंगा तो फेल हो जाऊंगा, अगर मैं क्लास अटेंड नहीं करूंगा तो रस्टिकेट हो जाऊंगा, अगर मैं नौकरी में नहीं गया तो फिर मुझे वेतन नहीं मिलेगा, ये बहुत ही और पैसे मिलेंगे और पद मिलेगा और प्रतिष्ठा मिलेगी, ये रजोगुणी है। लेकिन तमोगुणी और रजोगुणी से उठकर सत्वगुणी के स्तर पर जो प्रेरणा है वो कर्तव्य परायणता के आधार पर है। चाहे इस कार्य में कितना कष्ट क्यों न हो, दर्द क्यों न हो, मैं ये कार्य अवश्य करूंगा क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, इट इज माई ड्यूटी। ये सत्व गुण से उत्पन्न होता है। जब मैं आश्रम ज्वाइन किया 1993 में, तो मुझे किचन में भेजा गया सेवा करने। एक दूसरा नया साधु भी आया ज्वाइन करने और मेरे साथ ज्वाइन हुआ, उसको भी किचन भेजा गया। तो मैंने उसे चपाती बनाने के लिए लगा दिया। 1 हफ्ते के बाद वो मेरे पास आके कहता है, अरे मैं कितना बड़ा कथाकार हूं, गांव में खड़े होकर जब लेक्चर देता हूं पूरा गांव खड़ा हो जाता है, इस टैलेंट को बिना समझे आपने मुझे चपाती बनाने लगा दिया। मैं इस्कॉन में ज्वाइन हुआ सनातन धर्म का प्रचार करने, चपाती बनाने नहीं। तो मैंने कहा मुझे क्यों कह रहे हो, मैं भी तो चपाती बना रहा हूं, आप और मैं चर्चा करके क्या होगा। उसने कहा नहीं नहीं, मेरे मन में ये बात आई तो आपको कहकर मन हल्का कर रहा हूं। 2 हफ्ते बाद फिर आया, फिर वही कंप्लेंट, सनातन धर्म का प्रचार करने आया हूं, चपाती बनाने नहीं। 1 महीने के बाद बोरिया बिस्तर लेके निकल गए, जाते जाते फिर वही डायलॉग मारा, आप लोग मेरे टैलेंट को नहीं पहचान पाए, प्रचार करने आए चपाती बनाने नहीं। 10 साल बाद मुझे प्रोग्राम में मिले, मुझे देखते ही साथ भागे भागे मेरे पास आए, बोले मंदिर से निकलने के बाद शादी की, शादी के बाद पत्नी को बैक पेन हो गया, घर पे रोज चपाती मैं ही बनाता। और कहने लगे कि उसी समय थोड़ा धीरज रखता तो शायद वही अच्छा होता। तो कभी कभी कर्तव्य परायणता को देखकर हमें लगता है ये ओल्ड फैशन है, लेकिन नहीं। जब तक कर्तव्य के आधार पर हम लोग काम नहीं करेंगे, सत्व गुण की वृद्धि नहीं होगी और हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए ये दूसरा कि आपका इंटेंशन क्या, आपकी प्रेरणा क्या होगी। तो फोकस, इंटेंशन आर फॉर रेजिलियंस। रेजिलियंस शब्द का अर्थ क्या है? रेजिलियंस शब्द का अर्थ है कि चाहे कितनी भी विपत्तियां क्यों न आए, हम फिर उठकर उस चुनौती को सामना करने के लिए तैयार हों। हृदय के भीतर काम, क्रोध, लोभ इत्यादि बारंबार आक्रमण करेंगे,
लेकिन हमें इन मन के भीतर की भावनाओं को विजय प्राप्त करना है। आज बड़े से बड़ा व्यक्ति कितना भी बड़ा उद्योगपति क्यों न बन जाए, आप न्यूज़ में पढ़ते होंगे ये क्रोध का शिकार हो गए, ये काम वासना के शिकार हो गए। तो जब तक आंतरिक रूप से आपके अंदर नियंत्रण नहीं, डिसिप्लिन नहीं, एंड डिसिप्लिन इज द फ्यूजन ऑफ इंटेंशन विथ एक्शन, डिसिप्लिन इज द फ्यूजन ऑफ इंटेंशन विथ एक्शन, तब तक आप अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकते। कल मैं शाम के प्रोग्राम में बड़ौदा इस्कॉन में वर्णन कर रहा था कि मैं कई वर्ष पहले जेल का प्रोग्राम कर रहा था। 500 कैदी मेरे प्रोग्राम में बैठे थे, यरवड़ा जेल में प्रोग्राम था। और जैसे ही मैंने लेक्चर दिया, लेक्चर के बाद मैंने पूछा कोई प्रश्न है क्या, तो एक कैदी ने हाथ उठाया और कहा प्रश्न है। तो मैंने कहा पूछो। वो कैदी कहता है मैं स्टेज पे आके प्रश्न पूछूंगा। मैं घबरा गया। मैंने कमिश्नर साहब को पूछा कौन है भाई ये जो स्टेज पे आके पूछेगा। कमिश्नर साहब ने कहा 12 मर्डर किया उसने। मैंने कहा मैं 13वां होने वाला हूं क्या? उन्होंने कहा नहीं चिंता मत करो, आने दो। वो आए स्टेज पर, उन्होंने प्रश्न पूछा और मैंने उत्तर दिया। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि भाई इतने कम उम्र में इतने मर्डर कर दिए कैसे? उन्होंने कहा जब मन के अंदर क्रोध छा जाता है कुछ दिखता नहीं, विवेक शक्ति समाप्त हो जाती है, आंखों के सामने धुंधला छा जाता है। MIT बॉस्टन में मैं लेक्चर दे रहा था, पहली बार लेक्चर दे रहा था और IIT से होने के कारण मैं काफी एक्साइटेड था कि MIT में आज लेक्चर हो रहा है। तो लेक्चर के लिए मैं खड़ा था, मेरा एक प्रेजेंटेशन था और LCD प्रोजेक्टर वो लोग चलाने का प्रयास कर रहे थे। बहुत प्रयास के बाद विफल हो गए। मेरे पास आके कान में वो ऑर्गेनाइजर कहते हैं सर LCD प्रोजेक्टर चल नहीं रहा, आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम नहीं दिखा पाएंगे, आप कृष्णा के ऊपर निर्भर होकर लेक्चर दो। मैंने कहा मेरा ही फिलॉसफी मुझे सुना है। लेकिन मैं कुछ फीडबैक उसको नहीं दे पाया क्योंकि मेरे लेक्चर का टॉपिक था ओवरकमिंग एंगर, और पहला स्लाइड ही होने वाला था कि जीवन में कई परिस्थितियां आएंगी जिसको हम वश में नहीं कर पाएंगे और हमारी अपेक्षा के विपरीत परिस्थितियां आएंगी, उसे सहन करना है। तो प्रभुपाद जी जब लंदन पहुंचे तो वहां पर एक रिपोर्टर ने बड़े उद्दंडता पूर्वक उनको पूछा स्वामी जी आप लंदन क्यों आए हो? प्रभुपाद जी ने कहा अंग्रेजों ने भारत के ऊपर 300 साल से हीरा मोती सोना चांदी सब कुछ लूट लूट के लेके गए, लेकिन भारत का सबसे अनमोल रत्न भगवत गीता लूटना भूल गए, उसका होम डिलीवरी करने आया हूं। और उस दिन से आज तक इस्कॉन के भक्तों ने विश्व भर में 55 करोड़ भगवत गीता वितरित कर दिए हैं 80 भाषाओं में। तो इसलिए यह समझना बहुत आवश्यक है कि चाहे हम कितना भी शिक्षा प्राप्त कर लें, आंतरिक रूप से हमको शक्तिशाली होना आवश्यक है। आज भारत में 70,000 अस्पताल हैं शारीरिक रोग को दूर करने के लिए, लेकिन मानसिक रोग को दूर करने के लिए, मन के वायरस को दूर करने के लिए भी अस्पताल बने हैं। मन के अस्पताल का नाम मंदिर है और भारत में 20 लाख मंदिर हैं। और ये क्यों बनाए गए हैं? जिससे मानसिक स्वास्थ्य को हम सशक्त बना के रखें। इसलिए आज कार्यक्रम के आरंभ में आप लोग सुन रहे थे मंत्र का उद्घोष। मंत्र अर्थात मन को स्वस्थ रखने वाला, वायरस से दूर करने वाला दवा, औषधि।
कई साल पहले की बात है, मैं बंबई से खड़गपुर आईआईटी में प्रोग्राम के लिए जा रहा था। मेरे साथ अमेरिका से 2 मित्र आए थे और हम लोग का फ्लाइट लैंड हुआ कलकत्ता में, और जैसे कलकत्ता में लैंड हुआ मालूम पड़ा कि आज बंगाल बंद है। तो जैसे हम लोगों का स्वागत किया गया फूलों के हार से, मैंने ऑर्गेनाइजर को पूछा आज तो बंगाल बंद है, 3 घंटे का फासला है खड़गपुर के लिए, गाड़ियां तो नहीं जा सकती, तो प्रोग्राम कैंसिल होगा। तो ऑर्गेनाइजर ने कहा नहीं प्रोग्राम चालू है। मैंने कहा लेकिन बंगाल बंद है, गाड़ी कैसे जाएगी? ऑर्गेनाइजर ने कहा सर हम आपको एम्बुलेंस में लेने आए हैं। मैंने कहा वाह, इसको कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। एम्बुलेंस में हम घुसने लगे तो अमेरिका के मेरे दोनों मित्र मुझसे पूछने लगे हम एम्बुलेंस में क्यों जा रहे हैं? मैंने कहा इसे समझाने के लिए बहुत समय लगेगा, क्योंकि सबसे पहले मुझे समझाना होगा बंद क्या होता है, उसी में आधा घंटा चला जाएगा। इससे अच्छा आप अंदर बैठो, हो सकता है रास्ते में कोई पत्थर भी मारे, लेकिन सही गाड़ी में बैठे हैं एम्बुलेंस में, अस्पताल पहुंच जाएंगे। गाड़ी चलने लगी, मैं आगे बैठा था, मेरे 2 मित्र पीछे थे अमेरिका से आए हुए। अचानक मुझे रोका गया और किसी एक व्यक्ति ने कहा हम देखना चाहते हैं पीछे कौन है, बंद के दिन ये एम्बुलेंस जा रहा है, पीछे कौन है देखना चाहते। मैंने कहा देख लो। पीछे अंदर झांक के उन्होंने देखा, हमारे दोनों मित्र अमेरिका से आए हुए ब्रेकफास्ट करने के बाद गले में हार लगा के यूं आराम से सोए हुए थे। उनको देख के वो आदमी कहता है इनकी आत्मा को शांति मिल गई। और देखते ही देखते 3 घंटे के अंदर गाड़ी पहुंच गई। तो जब 2007 के अंदर लीमन ब्रदर्स का घोटाला हुआ, जब विश्व भर में आर्थिक रूप से विश्व के सारे देश समाप्त होने लगे, भारत की इकोनॉमी बढ़ रही थी, तब एक बहुत प्रसिद्ध अर्थ विशेषज्ञ ने भारत के बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था को देखकर एक पेपर लिखा और कहा कि दुनिया की इकोनॉमी डाउन हो रही है, इंडिया की इकोनॉमी ऊपर क्यों आ रही है? और उसका कारण बताया जुगाड़। और यह भी कहा कि जुगाड़ इज अ नॉन ट्रांसलेटेबल वर्ड। जुगाड़ शब्द है वो भारतीय होंगे तभी समझ सकते हैं। कितने लोग समझ गए जुगाड़? ये देखो, अमेरिका में पूछूंगा तो बोले जुगाड़, व्हाट इज जुगाड़? समझ ही नहीं पाए। तो इसलिए रेजिलियंस अर्थात वसुदेव के 6 पुत्रों की हत्या होने पर भी वसुदेव निस्सहाय हुए लेकिन निराश नहीं हुए। और ये भारत के सनातन धर्म के सभ्यता और संस्कृति की विशेषता है कि मानव समाज में हर प्रकार की विपत्ति आने पर वी मे बिकम हेल्पलेस बट वी विल नेवर बिकम होपलेस। ततश्च शौरी भगवत प्रचोदित सुतम समादाय च सूतिका गृहात्। एक के बाद एक 6 पुत्रों की निर्मम रूप से हत्या होने के पश्चात कौन माता पिता आशावादी बन सकता है? वसुदेव जी के 6 पुत्रों के नाश के बाद भी वो इतने आशावादी थे कि भाई 8वां पुत्र का जन्म होगा। चाहे आज मेरे वर्तमान में कितना ही अंधकार में परिस्थिति क्यों न हो, मुझे इस बात की पूरी आशा है कि इस अंधकार में समाप्त करने के लिए आशा की सूर्य की किरणें बहुत ही शीघ्र जागृत होंगी, उदित होंगी। और इसलिए वसुदेव जी को श्रीमद् भागवत में शौर्य कहा गया है, जिन्होंने शौर्य प्रदर्शन किया। वन हु डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सट्रीम ब्रेवरी। प्रश्न उठता है कि अपने समस्त जीवन काल में वसुदेव जी ने कभी अपने हाथ में तब तक तलवार लेकर कोई युद्ध नहीं जीता था, तो शौर्य क्यों कहा गया है? So the definition of bravery in Sanatan Dharma tradition is not that you conquer over an enemy,
But a brave person is one who doesn't allow any circumstances to conquer over his hope, and he refuses to become hopeless. और आज बैठे हुए युवा पीढ़ी, आप लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि हर प्रकार की विपत्ति की परिस्थितियों में कैसे आशावादी बने रहना. How to remain always hopeful, optimistic and full of creative ideas even in the most difficult situation. आपकी पीढ़ी के लिए भारत की आर्थिक परिस्थिति सुधर चुकी है, भारत की अर्थव्यवस्था सुधर चुकी है, टेक्नोलॉजी सुधर चुका है. You are getting things on a silver platter. हम उस जनरेशन के हैं जो कि कई साल हमने टेलीविजन ही नहीं देखा. उसके बाद एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया, उसमें भी शाम का 2 घंटा 3 घंटा प्रोग्राम चलता था दूरदर्शन का, उसमें भी आधा टाइम किसानों का ही प्रोग्राम चलता है. उसके बाद फिर धीरे 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 टेलीविजन आने लगा, फिर अब इंटरनेट, फिर स्मार्टफोन. प्रॉब्लम यह है कि जब समस्याओं का समाधान केवल बटन के आगे मिल जाता है तो हर एक व्यक्ति को लगता है कि बस जीवन की सारी समस्याओं का समाधान शुड बी एट द टच ऑफ अ बटन. बट दैट्स नॉट द रियलिटी. इसलिए आप सभी को आवश्यक है धीरज, आंतरिक मानसिक शक्ति, आशावादी होना, to be resilient, to be optimistic, to be mentally strong, to be eternally hopeful and never become hopeless in any situation. That is called resilience in R. तो पहला F क्या था? Focus. I for intention, R for last है E, which stands for empathy. Empathy अर्थात दूसरों के प्रति सद्भावना. Empathy अर्थात दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास करना. Empathy का अर्थात केवल अपनी ही भावनाओं को और केवल स्वार्थ पर केंद्रित होकर ही विचार विमर्श नहीं करना. Concern for others. आज एक बहुत बड़ी समस्या है कि सोसाइटी सेल्फ सेंट्रिक होती जा रही है. मैं, मेरा. और इसके कारण लोगों के बीच संबंध स्खलित होते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं. और जब संबंध समाप्त होंगे परिवार टूटने लगेंगे. और इस बात को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर संबंध समाप्त होने लगे तो धीरे धीरे लोगों की एक दूसरे के ऊपर श्रद्धा नष्ट होने लगेगी. आज लोग बड़े जोश के साथ आते हैं, बोलते हैं हम लोग स्टार्टअप करेंगे, एक साथ पार्टनरशिप करेंगे. लेकिन हर व्यक्ति अपने मन में सोचता है मौका मिले तो हम कुछ और कर लेंगे. If the basis of the relationship is not trust, each one is trying to cheat the other, the relationship will not last. 3 मित्र आए, उन्होंने कहा चलो भाई बिजनेस करते हैं. तीनों ने हाथ मिलाया, बिजनेस प्लान डिस्कस किया और सोचा चलो भाई हम बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं. लेकिन तीनों के मन में खोट था कि भाई मौका मिले तो हम दूसरे को फंसाएंगे. फिर उन्होंने कहा लेट अस सेलिब्रेट अवर पार्टनरशिप. एक खीर बनाते हैं साथ मिलकर. तीनों ने खीर तैयार किया, बहुत कम मात्रा में खीर बना. उन्होंने कहा इतनी कम मात्रा में खीर बना है, बांटेंगे तो मजा नहीं आएगा. ऐसा करते हैं रात को सो जाते हैं, सुबह उठकर जिसका सबसे बढ़िया सपना आएगा वो खीर खाएगा. तो तीनों ने सोचा हाँ मैं दूसरे को फंसा दूंगा. खीर तैयार किया, फ्रिज में रख दिया, तीनों सो गए. अगले दिन उठे तो पहले ने कहा मैं रात को सपने में ब्रह्मलोक गया था,
ब्रह्मा जी को प्रणाम करके आया, ब्रह्मा जी ने मुझे आशीर्वाद दिया। दूसरे ने कहा अरे छोड़ो यार ब्रह्मलोक क्या, मैं शिवलोक गया, शिव जी को प्रणाम करके आया, शिव जी का बभूत भी लेके आया, देखो ये। तीसरे ने कहा मेरे सपने में बजरंगबली हनुमान आए और उन्होंने मुझे इस तरह मुक्का दिखा के कहा खीर खा ले। बाकी दोनों ने कहा क्या किया भैया, जाके फ्रिज खोला, खीर खा ली था। बोला अरे यार तुमने हमको उठाया नहीं, खुद खा गए। बोले क्या करे, मैं गया था तुमको ढूंढने के लिए, तुम ब्रह्मलोक गए थे, तुम शिवलोक गए थे, मिले ही नहीं, मैं ही खा गया। तो हर व्यक्ति केवल अपना ही जब सोचता रहता है तो कुछ ना कुछ दिमाग लगाकर छल कपट करने पे उतर ही आता है। लैक ऑफ एम्पैथी। आज भारत में पारिवारिक समस्या बहुत चलती जा रही है। जो पूरे समाज का सबसे बेसिक यूनिट है परिवार, उसे एकत्रित बना के रखना है। लोग कहते हैं कि भाई आप लोग आध्यात्मिक ये सब कार्य क्यों करते हो, सबको अंदर लेने के लिए क्या? बोले नहीं भैया, आप घर को कैसे मंदिर बना सकते हो और घरों में रहकर कैसे अपनी चेतना को योग में जोड़ सकते हो, इसलिए हम लोग सब चला रहे हैं। एक कॉलेज स्टूडेंट को मैं प्रसाद दे रहा था, प्रसाद मना कर रहा था, नहीं लूंगा नहीं लूंगा नहीं लूंगा। मैंने कहा क्या भाई, गीता मना करता हुआ लड़का देखा मैंने, प्रसाद क्यों मना कर रहा है? वो तो मुझे डर लगता है ये खाऊंगा मेरा भी हेयर स्टाइल आपके जैसा हो जाएगा। मैंने कहा नहीं भाई ऐसी बात नहीं है। हम लोग लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं कि आध्यात्म का अर्थ ये नहीं कि आप अपने घर को छोड़ो, लेकिन आध्यात्म का अर्थ है कि आप अपने घर में भगवान को और भक्ति को कैसे जोड़ो, ये है मतलब। अमेरिका के कॉलेज कैंपस में मैं लेक्चर दे रहा था। एक अमेरिकन नवयुवक 20 साल का मेरे पास आया, हिंदी में बोलने लगा। मैंने कहा यार तू तो दिखने में अमेरिकन लग रहा है, हिंदी कैसे बोलते हो? तुम अमेरिकन हो कि इंडियन हो? बोलता है मैं तो अमेरिकन हूं। मैंने कहा हिंदी कैसे बोलते हो? वो कहता है मैं एक करोड़पति बाप का बेटा हूं, कैलिफोर्निया में जन्म लिया, पिताजी ने मुझे सब कुछ दिया अपने जीवन में, गाड़ी, गोल्फ कोर्स, टेनिस कोर्ट, ये वो। मैं 17 साल का हुआ तो पिताजी को मैंने कहा पिताजी आपने मुझे जीवन में सब कुछ दिया, आर्थिक विकास दिया, समृद्धि दी, फैसिलिटीज दिए, लेकिन पिताजी आपने मुझे परिवार का सुख नहीं दिया, क्योंकि मैं जब 2 वर्ष का था आपका डिवोर्स हो गया था और मैं अकेला बड़ा हुआ। अब मैं 17 वर्ष की आयु में परिवार क्या है इसको अनुभव करना चाहता हूं पिताजी। परिवार के 4 लोग बैठकर जब भोजन करते हैं उसका अनुभव लेना चाहता हूं। स्नेह का आदान प्रदान परिवार में क्या होता है इसको समझना चाहता हूं। आज लग्जमबर्ग जैसे कंट्री में 88% डिवोर्स रेट है, स्पेन का 65% डिवोर्स रेट है, फ्रांस का 55% डिवोर्स रेट है, रशिया का 51% डिवोर्स रेट है, अमेरिका का 46% डिवोर्स रेट है, ग्लोबल डिवोर्स रेट 44% है, लेकिन विश्व का सबसे कम डिवोर्स रेट भारत में है, ओनली 1%। इसके पिताजी ने कहा बेटा अगर परिवार क्या है अनुभव करना है भारत जाओ। भारत आ गए। भारत में आकर किसी परिवार में गए और कहा मुझे अपना परिवार का सदस्य बनाओ, पेइंग गेस्ट बना लो। और आप मुझे अपने घर पर पेइंग गेस्ट बना के 2 साल के लिए रखते हो, केवल परिवार का अनुभव करने और कुछ नहीं, केवल वो स्नेह का आदान प्रदान में देखना चाहता हूं, क्योंकि इतना कमाकर इतना कुछ मैंने कैलिफोर्निया में देख लिया, लेकिन परिवार का सुख मुझे नहीं मिला। अगर 2 साल तक आप मुझे पेइंग गेस्ट बना के रख लोगे अपने परिवार में, हर महीने में 1 लाख रुपए रेंट दूंगा पेइंग गेस्ट का। वो परिवार ने कहा 2 साल क्यों, जिंदगी भर रहो। फिर परिवार ने कहा अगर आपके दूसरे मित्र भी हैं जिनको परिवार अनुभव करना है उनको भी बुला लो, हम 1-2 कमरे और खोल देंगे। तो कभी कभी भारत में रहकर
हम लोग इस बात को समझते नहीं कि कितना बड़ा सौभाग्य है हमको कि न केवल हमें समृद्धि प्राप्त थी, लेकिन समृद्धि के साथ संस्कार भी प्राप्त हैं। क्योंकि पैसे देकर आप कार खरीद सकते हो, लेकिन पैसे देकर आप बाजार में संस्कार नहीं खरीद सकते। और उन संस्कारों को अपने जीवन में उतारना हो तो उसकी आधारशिला परिवार है। इसलिए केवल आर्थिक विकास के इस रेस के पीछे भागते भागते ये न भूलो कि हम लोगों का समाज एक बहुत ही अद्भुत समाज है और उसके अनुकूल हमें अपना जीवन जीना चाहिए। आज इस्कॉन बड़ौदा की ओर से इस युवा सम्मेलन में उपस्थित आप सभी युवक युवतियों को मैं इस्कॉन की ओर से साधुवाद देता हूं कि संध्याकालीन सत्र में आप बड़ौदा के किसी भी कोने में हो सकते थे, लेकिन आप सभी भारत के बड़े ही आदर्श युवा हो जो अपने भौतिक उन्नति और शैक्षणिक उन्नति के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक और सांस्कारिक उन्नति के विषय में भी विचार कर रहे हो। और ऐसे मननशील भारत के युवाओं को अवश्य ही दिन दूनी रात चौगुनी सफलता प्राप्त होगी। और मैं भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करता हूं कि यहां बैठे उपस्थित हर युवा को कल के दिन सफलता प्राप्त हो अपने प्रोफेशनल और पर्सनल जीवन में। अंत में मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूं कि इतने प्रयास से आप लोगों ने इस कार्यक्रम की योजना बनाई, एडवर्टाइज किया, व्यवस्था की, इस पंडाल के रूप में भोजन की व्यवस्था की, संगीत की व्यवस्था की, सब लोगों को निमंत्रण दिया। और आज उसका परिणाम ये है कि 1000 के ऊपर युवा यहाँ पर उपस्थित हैं और 1000 लोग यहाँ से निकलेंगे एक नए भारत को तैयार करने, जो कि वास्तव में विश्व गुरु बन के ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम घूम रहा है कैंपस में, यही काम है तेरे को, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी। तो मैंने उसको रिप्लाई किया, पढ़ाई तो मैं कर ही रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं यूनिवर्सिटी से बाहर निकल गया हूँ, पढ़ाई तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मेरी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मुझे रियलाइज होती है, जो मुझे मिली है मेरे सीनियर्स से, और जो हमारी परंपरा में अपना लाइफ, वो देख कुत्ता है ना, वो भी एंजॉय करता है। दूसरे की लाइफ में कितना एंजॉयमेंट ला रहे हो तुम, राइट? So this is called empathy. Both life to add the values to the other's life, to our life, right? So by the mercy of Gaurang Prabhu, by the mercy of Srila Prabhupada, by the mercy of ISKCON Barodara, we have arranged this wonderful program. लेकिन ये तो अभी ट्रेलर है। सुमित प्रभु, भाई इस बार मैं मर के रहूंगा भाई। अरे लेकिन आत्महत्या करके कुछ नहीं हासिल होगा, तू समझ मेरी बात। थोड़े दिन बातें करेंगे लोग, मामला यहां से वहां होगा और फिर लोग भूल जाएंगे। अरे ये नहीं मानेंगे, ये लोग नहीं सुधरने वाले। तू सुनता नहीं क्यों है मेरी बात? तुझे पता है घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं यार मुझ पे, पर अगर आज मैं इस अनशन से उठ गया ना भाई, हो गया मेरा काम तमाम। अरे मेरा नाम है आनंद, जिंदगी में आनंद नहीं है। अरे लेकिन आत्महत्या से कुछ हासिल नहीं होगा। 3 दिन से तूने खाया भी नहीं। क्यों रोकता है तू बार बार मुझे? क्या हो जाएगा? तू चाहता है कि इस बोझ तले मरूं? अरे रोज रोज मरने से अच्छा साला एक ही बार मर जाऊं।
अरे भाई भगवान पे भरोसा रख। भगवान है? हैं? अगर ऊपर वाला है ना और देख रहा है ना तो जरूर मेरी मदद करेगा। बैठा हूं मैं डियर अनशन पे, देखता हूं कब आता है वो। लेकिन मैंने निर्णय ले लिया है कि अब मैं आत्म बलिदान दे के ही रहूंगा। अरे ऐसी बात मत कर। अरे सोच के देख एक बार, अपने परिवार का तो सोच। पूरा परिवार तुम पर टिका हुआ है। कैसा परिवार यार? 23 साल का हो गया यार। हाँ, मैं 23 की उम्र में मार्क जुकरबर्ग नहीं बन पाया, मैं बिल गेट्स नहीं बन पाया, तो क्या? वो तो मैं भी एक बच्चा ही ना, मैं सपनों के पीछे भाग रहा हूँ। अरे देरी होती है, किसी को थोड़ी देर से सक्सेस मिलती है, किसी को जल्दी मिल जाती है। धन कहते हैं ना लोग, जिंदगी में पैसा मैटर नहीं करता। अरे इस धन की वजह से मैं आज अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ नहीं पा रहा हूँ। बता कैसे ना मरूं? अरे लेकिन आत्महत्या सॉल्यूशन नहीं है भाई, तू समझता क्यों नहीं है? कुछ कर लेंगे हम ढंग का कुछ। अगर जान ही नहीं बचेगी तो क्या करेंगे हम? समझ मेरी बात को, तू समझ रहा है ना? हाँ। मरने की बात को छोड़ दे और भगवान पे भरोसा रख। कहता है ना, ठीक है। लेकिन तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा यार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खुलासा न्यूज के खुलासा चैनल में। जैसा कि आप शो देख रहे हैं, इसका नाम है मिलेगा खर्चा तभी होगी चर्चा। तो ये हम यहाँ पे वडोदरा के कलेक्टर ऑफिस के बाहर से बने हुए हैं, जहाँ पे हजारों की तादाद में भीड़ जमा है। ये युवा, ये युवतियाँ टीवी से टीवी पे आएंगे। टीवी पे हाँ, अपनी शूटिंग करके बाद में डालोगे सब? लाइव अभी चल रहा है, ये देखो सब देख रहे हैं। जाने दो, जाने दो। लाइव क्या होता है? और हाँ, ये जो तुम बदतमीजी और दादागिरी कर रहे हो ना इनके सामने, ये सब देख रहे हैं, जाने दो। अरे ऐसा कुछ नहीं, हमारे नेताजी तो श्रेष्ठ नेताजी है। पिछले 5 सालों में उन्हें इलेक्शन में जिताया जा रहा है। नेताजी हमारे शेर है। हमारे नेताजी ने घरों घरों में पानी बिजलियाँ पहुँचाई है। हमारे नेताजी बड़े महान है। हमारे नेताजी शेर है, शेर। नेताजी हमेशा से आपके साथ खड़े रहे हैं और कल भी खड़े रहेंगे। कोई भी दुख की घड़ी आ जाए, कोई भी सुख की घड़ी आ जाए, लेकिन आपके साथ रहेंगे। डरने की कोई बात नहीं। देखिए वो महिला मुझे देख के कितने खुश हो रही, वो प्रभु से देखिए, प्रभु जी की आंखों में आज भी मुझे देख के रोशनी आ रही। देखिए देखिए, गॉगल हटाइए, देखिए, बिल्कुल देखिए, ये युवा देखिए, क्या उम्र है इसकी, आत्महत्या करने चला है। क्या दिक्कत है? नेताजी ने तुम्हें क्या नहीं दिया है? आइए यार, नेताजी ने तुम्हें दिया है रोशनी, नेताजी ने दिया है तुम्हें खाना, अनाज। इस शहर को बिजली दी किसने? इस शहर को रास्ते दिए किसने? इस शहर को करप्शन दिया किसने? पुराने नेताजी, हमने नहीं। देखिए युवा, ये युवा कितना हताश है। लेकिन आज अगर नेताजी उसके साथ खड़े नहीं रहेंगे तो युवा, ये शहर अनाथ हो जाएगा, लावारिस हो जाएगा। लेकिन नेताजी ऐसा होने नहीं देंगे। तो नेताजी कौन है? हम ही हैं। यस, आओ बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है? क्यों अनशन करने बैठे हो? क्या दिक्कत है? बोलो, बोल क्यों नहीं रहे? अरे आप बोलो, अरे बोलो बोलो, हम हैं। क्या दिक्कत? मुझको बुलवाओ कुछ। सुसाइड कर रहे हैं। सुसाइड? ये युवक देखिए, इस युवक को देखिए,
ढंग से दाढ़ी भी नहीं आई है और सुसाइड करने जा रहा है। हे भगवान, ये क्या दिन देखने पड़ रहे हैं? इस देश का युवा सुसाइड कर रहा है। नेताजी की आंख में पानी आ गया है। क्यों सुसाइड कर रहे हो तुम? अरे नेताजी, मैं नहीं सुसाइड कर रहा हूँ। तुम नहीं हो तो अरे ये आनंद सुसाइड कर रहा है। मैं कब से बोल रहा हूँ, सुन ही नहीं रहे। अरे इस दुखद अवसर पर नेताजी काफी दुखी है। ये मोबाइल पकड़ी। आनंद, आओ। क्या एक लड़की से तुम इतने परेशान हो गए? अपने घर वालों को भूल गए? अरे याद करो वो दिन जब तुम्हारे पापा ने तुम्हें चलना सिखाया था। तुम्हारी माता ने जब तुम्हें चलना नहीं आता था तब तुम्हें गोद पे उठाया था। वो सब भूल के तुम आत्महत्या करने चले आए। बस हमें कुछ नहीं सुनना है नेताजी। नहीं सुनना है। नेताजी, क्या है? ये सुसाइड का मामला लोन का है। मतलब लोन के लिए है। लोन के लिए? हाँ। बस इधर आओ। आजकल की बैंक लोन का वादा करती है लेकिन लोन नहीं देती है। हमारे देश के युवा को बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं, चप्पल घिस जाती है पर लोन नहीं मिलता है। युवा घर लेगा तो लेगा कैसे? पढ़ाई करेगा तो करेगा कैसे? लोन चाहिए, फंड चाहिए। कौन सी बैंक है बताओ? हम तुम्हें लोन दिलवाएंगे। नेताजी, उस बैंक का खात्मा हम करेंगे। नेताजी, कौन सी बैंक है? नेताजी, हाँ? आपकी जमाई की बैंक है वो। पेंशन चल रहा है, आपकी जमाई की बैंक है। आपकी जमाई की बैंक है वो। हमारी? हाँ मतलब पर्सनल जमाई। हाँ। देखिए, बैंक अपना काम काफी सिस्टमेटिकली कर रही है। बैंक के भी कुछ रूल्स, पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स होते हैं। उसका भी एक डेकोरम होता है। हमें बैंक के कामों में, बैंक के सिस्टम में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। मिलते हैं। नेताजी तुम्हारे साथ है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। रंगा भाई, नेताजी, रंगा भैया, बोलना चाहेंगे आप इसके बारे में नेताजी? अरे रुकिए नेताजी, और नेताजी, अरे नेताजी, अरे नेताजी, आपके साथ बने रहेंगे। नेताजी अभी चलते हैं, चलिए। नेताजी कुछ तो बोले। नेताजी बस करो यार, बस करो यार। हम इंसान हो या क्या हो गए? इंसान के नाम पे हैवान हो। नेताजी को अपने फुटेज की पड़ी है और रिपोर्टर भैया हमारे मौत का लाइव प्रसारण दिखा रहा है। आपने वो सुपर 30 की वो डायलॉग सुनी है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा? गलत बोला है। राजा का बेटा राजा ही बनेगा और गरीब का बेटा गरीब ही बनेगा, क्योंकि अगर गरीब का बेटा अमीर बन गया या राजा बन गया तो राजा के बेटे का भविष्य खतरे में आ जाएगा। तुम्हें पता है, मैं तो इंसानों की बात कर रहा हूं। अरे इंसान है, इंसानियत नहीं है। छोड़ो इंसान, भगवान कहाँ है? भगवान ने धरती बनाई, ये दुनिया बनाया, ये कायनात बनाई, लेकिन बस बना दिया। बना के भगवान भूल गए। हाँ, आपको पता है मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ। बचपन से मैंने बहुत मेहनत किया। पापा जॉब पे जाते थे, सब जमा करके मैंने खुद की पढ़ाई खुद से की और अच्छे मार्क्स लाए। लेकिन क्या फायदा? आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, गरीब होना पाप है। कैसे मैं बताता हूँ। बचपन से ना मैं एक ही चीज कर रहा हूँ और वो है एडजस्ट।
और जब तुम एक बार एडजस्ट करना सीख लेते हो ना, तो ये जिंदगी ना पूरी लाइफ तुम्हें सिर्फ एडजस्ट ही करवाते रहती है बस। ये बैंक वाले कहते हैं कि आ जाइए, आपका लोन करा देंगे, आप अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो। फिर जब फाइल जमा करा दी तो कहते हैं कल आइए, आज आइए, ये लाइन में लग जाएगी, वो डॉक्यूमेंट लेंगे, फलाना को ले आइए, ये संस्था से। अबे आदमी होके गन्ना पे पूरा चूस लिया है। हाँ? इसलिए ना कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने ये दुनिया इंसानों की नहीं बनाई है, यहाँ रहते हैं हैवान। और फिर कभी कभी तो ये भी लगता है कि यार भगवान ही नहीं है, नहीं है। रुको आनंद बेटा, रुको। है भगवान है, धैर्य रखो, है, सब ठीक हो जाएगा। होगा। कैसे ठीक होगा प्रभु जी? धैर्य रखो, आज नहीं तो कल सब होगा। भगवान सब देख रहे हैं। भगवान ने ये दुनिया बना के भूल नहीं गए हैं। भगवान है, इस दुनिया में है। आज नहीं तो कल सब होगा ठीक। भगवान आज भी थे, कल भी है और हर रोज रहेंगे। भगवान आपके साथ रहेंगे। पर मेरे कर्म इतने बुरे नहीं थे, अच्छा लड़का हूं मैं, कुछ नहीं बिगाड़ा मैंने किसी का, फिर मेरे साथ ही क्यों? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। सबके साथ सब होता है, ऐसा नहीं है। बुरे कर्म सबके साथ होते हैं। ये जो हो रहा है वो आपके साथ, ये आपके कर्म है। जैसे जैसे आप काम करोगे वैसे वैसे आपके कर्म मिलेंगे। ये लॉ ऑफ कर्म है। जो आज आप अच्छा कर रहे हो तो वो आपको किसी ना किसी तरीके से वापस मिलेगा, कहीं ना कहीं से मिलेगा। ये जीवन में नहीं तो अगले जीवन में कहीं ना कहीं तो मिलेगा आपको। प्रभु जी नहीं बेटा, नहीं नहीं तो मुझसे 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 नहीं हो पाएगा प्रभु जी। नहीं, आत्महत्या हर चीज का सोल्यूशन नहीं है। आप जिंदगी नहीं जी जा रहे प्रभु जी। नहीं, आत्महत्या सोल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम सबको दी गई है भगवान ने। आज आपके पास थोड़ी कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है किसी और के पास ज्यादा प्रॉब्लम हो। भगवान सबकी परीक्षा ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है सब ठीक होगा। आत्महत्या नहीं होता है सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन। ठीक हो जाएगा? जी, कैसे हो जाएगा? सब ठीक होगा। कैसे हो जाएगा आप बताओ मुझे। आप गारंटी देते हो सब ठीक हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा भगवान का नाम लो, सारे अच्छे कर्म करो। नाम लेने से ठीक हो जाएगा सब? शांत रहो, मन शांत रहो, शांति, सच्चे दिल से भगवान की आस्था करो, भगवान की प्रार्थना करो, तो अच्छे काम करो, भगवान धाम जाओ, आपको अच्छी चीजें मिलेगी। क्या आपके हाथ में क्या है? ये भगवत गीता है। ये आपको सही राह पे ले जाएगी। इस पे इसे पढ़िए और इसके लिखे हुए राह पे जाइए। ये आपको सही राह दिखाएगी, आपके सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस लाएगी। और भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद प्रभु जी, आपने आज मुझे जीवन की दिशा दिखा दी और ना पता कितने ऐसे स्टूडेंट हो गए जिनको ये दिशा मिल गई है। तो बस अब ना ये आनंद बदल गया है। पहले जो रोता धोता था, अब देखो क्या करता है। म्यूजिक बंद कर दीजिए। आवाज आ रही है आप लोग तक? यूकेलेले की थोड़ा सा हल्का हो पालन हारे जब भी मुझे जीवन में समस्या आती है ना, मैं ये भजन याद करता हूँ। पालन हारे अच्युतम
और मैं चाहता हूँ कि जो भी महामंत्र में गाने वाला हूँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। Mother bass, Priyanju guitar, Ritesh Acharya drums, Harshit Jameti percussionist, Rishabh Trimali chorus. Hare Krishna, Hare Krishna. So, and costume, it is by Manan and Moy. Thank you, drama team. कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा बोलिए कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे Now I say this simple line. See two words at a time. Okay, repeat the two words. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama Hare Hare, आवाज में आ रही कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम कृष्णा कृष्णा हरे
Hare Hare